Hello students, in continuation to the previous lecture, today we will also discuss the topic sliding contact bearing. Now in the earlier lecture we saw the introduction of the sliding contact bearing. We just see the classification of the sliding contact bearing. It was thick film lubrication, thin film lubrication and zero film lubrication. So according to the thick film lubrication, it was divided into two parts: hydrodynamic bearing and hydrostatic bearing. So this is very important from the examination point of view. So one of the question is always come from the topic hydrodynamic and hydrostatic bearing. So thick film lubrication is hydrodynamic and hydrolubrication bearing. The difference between the two was in the hydrodynamic bearing, this is also called self-acting bearing, because in this the lubricant is flow and the requirement of this bearing is just sufficient and continuous supply of the lubricant. So हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग बेसिकली न्यूमेरिकल जो है वो हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग से ही आते हैं, और इन 90 ऑफ द न्यूमेरिकल यू विल फाइंड जर्नल बेयरिंग. तो व्हाट इज जर्नल बेयरिंग, ये समझना बहुत जरूरी है. ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था. जर्नल बेयरिंग इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग विच bear the radial which bear the load in the radial direction. तो जनरल बेयरिंग में कहीं भी थ्रस्ट लोड की या एक्सियल लोड की बात नहीं होती है. the bearing which bear the radial load and acting on the principle of hydrodynamic lubrication is called the जनरल बेयरिंग. तो जनरल बेयरिंग दो तरीके से हो सकती है, फुल बेयरिंग और पार्शियल बेयरिंग. अगर एंगल 360 डिग्री है तो फुल बेयरिंग हो जाएगा, अगर एंगल 180 डिग्री से कम है तो पार्शियल जनरल बेयरिंग, इट विल कॉल्ड पार्शियल जनरल बेयरिंग. तो आप देखोगे 90% ऑफ द न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द फुल जनरल बेयरिंग. यू विल सी, ये हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन, द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड मेन डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग इज in hydrostatic bearing we use the external pump to pressurize the lubricating oil. और बट इन द हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग कोई हम एक्सटर्नल पंप यूज नहीं करते हैं. उसकी रोटेशन की वजह से ही एक बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द शैफ्ट एक स्टेबल फिल्म अपने आप ही बन जाती है. यहाँ स्टेबल फिल्म या यू कैन से वेरी स्टेबल फिल्म विच कैन बियर द हाई लोड विच हैव द हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी, उसके लिए हम एक्सटर्नल पंप यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो वी ऑल्सो सी द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग एंड hydrodynamic bearing. This we have discussed. So based upon the type of load, the bearing can be divided into two parts: radial bearing and thrust bearing. So in the radial bearing, जैसा कि हमने देखा, this hydrodynamic and hydrostatic bearing is a type of radial bearing, and thrust bearing which bear the axial load. तो ये भी हमने last lecture में देखा था. Footstep bearing and collar bearing is a type of very common type of thrust bearing. Now in continuation to the previous topic, जो theory topic में यही आता है एग्जाम में. Now we will discuss the next topic, that is very important topic, term used in the hydrodynamic general bearing. तो मैंने बताया आपको हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग के ही न्यूमेरिकल 90% ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है. तो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक. Now see the term, we can say this is the terminology of the hydrodynamic general bearing. Let us say this O is the center of the bearing, O dash is the central of the journal, capital D is the diameter of the bearing, small d is the diameter of the journal, and L is the length of the bearing. ठीक है. So in the diagram we can see this R is shown, capital R is the radius of the bearing, small r is the radius of the journal. ठीक है. तो बेसिकली डायग्राम से आप समझ सकते हो, द आउटर पोर्शन इज बेयरिंग. तो बेयरिंग जो है इज जस्ट अ सिलेंड्रिकल शेप एलिमेंट. मटेरियल ऑफ द बेयरिंग, यू नो दैट इट कुड बी बेबिट मटेरियल, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है. इट कुड बी टिन और लेड बेस एलॉय जो होते हैं, कास्ट आयरन का बना हो सकता है. इट कुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर की भी बेयरिंग हो सकती है. तो बेयरिंग इज नथिंग बट अ बुश विच इज मेड ऑफ सम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल. ठीक है. तो आउटर बुश है, सिलेंड्रिकल शेप का बुश है, उसके अंदर हमने क्या सपोर्ट करना है, हमें सपोर्ट करना है शेफ्ट.
which is subjected to the various type of load, radial load। ठीक है, बेसिकली हम जनरल बेरिंग की बात कर रहे हैं तो हम केवल रेडियल लोड की बात करेंगे, जो कि किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम में आ सकता है, गियर की वजह से आ सकता है, चेन ड्राइव की वजह से आ सकता है, बेल्ट ड्राइव की वजह से आ सकता है, which is applied at the shaft। तो you can see O is the center of the bearing and O dash is the center of the शेफ्ट या और सेंटर ऑफ द जर्नल बोले या शेफ्ट बोले एक ही बात है। तो दिस डब्ल्यू इज एक्टिंग ऑन द ओ डैश, इट इज एक्टिंग ऑन द जर्नल। ठीक है, नाउ इन द हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग, this you can see this O and O dash is not meeting, there is some eccentricity in between O and O dash, there is a gap between O and O dash। तो होता क्या है कि जब जर्नल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, when the journal is start it makes a very stable film। तो let us see this H naught is the thickness of the film। तो इसको हम अभी डायग्राम पे आते हैं, पहले हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। नंबर 1 डायमेट्रिकल क्लियरेंस, it is capital D minus small d। Radial clearance, obviously it is half of the diametrical clearance। it is denoted by C is equal to capital R minus R, it is half of the diametrical clearance। Diametrical clearance ratio is the ratio of diametrical clearance divided by shaft diameter or journal diameter। Eccentricity, you can see in the diagram, radial distance between the O and O dash is called eccentricity। You can see in the diagram O और O dash के बीच में जो भी गैप आ रहा है, that is called eccentricity। Minimum oil film thickness, minimum distance between the bearing and the journal under the complete lubrication condition is called minimum oil film thickness। तो यहाँ पर जब एक बार shaft जो है वो रेस्ट पोजीशन से जब फुल स्पीड से घूमने लगेगा तो जो एक फिल्म का फॉर्मेशन होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस ये ऑब्वियस सी बात है, ये ओ डैश जो है वो एक फिक्स पॉइंट नहीं होगा, ये थोड़ा वेरी करता रहेगा, ये थोड़ा ऊपर की ओर भी शिफ्ट होगा, ओ की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये मिनिमम डिस्टेंस इतनी मेंटेन करना जरूरी है टू अवॉइड द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। दिस इज डिनोटेड बाय द एच नॉट। ये जो फिल्म जो बन रही है दिस इज कॉल्ड एच नॉट। ठीक है, तो एच नॉट इज द मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस which is so you can see in the diagram capital R, in the diagram this capital R which is the distance between O and outer of the bearing, capital R is the radius of the bearing। if we see capital R is equal to E plus, here is the summation E plus small r plus H naught। so you can see capital R is the capital R is equal to E plus R plus H naught, or we know that radial clearance is capital R minus R। if we put R into the left hand side we can say it is C। so you can see C radial clearance is equal to E plus H naught। ठीक है, तो from the diagram this relation can be shown। you have to remember this relationship, it can be utilized। now regarding the regarding the radial clearance, one important thing is that if it is not given in the numerical, अगर इसमें न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसे एज्यूम कर लो 0.001 into R where R is the radius of the journal, और एक डिजाइन डाटा बुक में एक टेबल दे रखी है जिसकी गाइडलाइंस हैं टू सी द वैल्यू ऑफ सी, और यू कैन सी द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम देयर ओनली। नाउ एच नॉट अपॉन सी का रेशियो जो होता है वो वेरी करता है 0.3 से 0.5। अगर न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है तो यू कैन अज्यूम एच नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू लेट अस से 0.4 आप अज्यूम कर सकते हो, या फिर आप डिजाइन डाटा बुक में एक और वैल्यू दे रखी है इसकी एच नॉट इज इक्वल टू 0.0002 इंटू स्मॉल आर। तो ये कुछ दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें ये सारी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एच नॉट और सी ये कहीं ना कहीं हमें निकालना पड़ सकता है इन द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट इज एटीट्यूड और इसेंट्रिसिटी रेशियो, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इसेंट्रिसिटी टू द रेडियल क्लियरेंस। you can derive this in the terms of H naught and C। ठीक है, now short and long bearing, if this L/D ratio is very important, L is the length of the bearing, L is the length of the journal and D is the diameter of the journal। if L/D ratio is less than 1 it is classified as short bearing, L/D ratio is greater than 1 it is long bearing, and L is equal to D is equal to square bearing। तो आप देखोगे तो
दिस LYD रेशियो ग्रेटर देन 1 और इज इक्वल टू D, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाते हैं ये दोनों टर्म. So LY in general machinery you can see LYD is 1 to 2. अगर न्यूमेरिकल में आपको गिवन नहीं है LYD रेशियो, यू कैन स्टार्ट द न्यूमेरिकल बाय अज्यूमिंग दैट LYD इज इक्वल टू 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर एंड बेयरिंग मॉडुलस. ये आपका थ्योरी में ये जनरली पूछ लिया जाता है. लेट अस सी एफ स्मॉल एफ इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द डिजाइन ऑफ जनरल बेयरिंग. तो इसको मैंने स्मॉल एफ से डिनोट किया है. ठीक है. तो कहीं कहीं अगर म्यू अगर मैंने लिख दिया है तो यू विल सी दिस, यहाँ पर म्यू नहीं है, दिस इज स्मॉल एफ. ठीक है. एफ से, क्योंकि भंडारी की डिजाइन डाटा बुक में एफ से ही डिनोट किया है, तो वी विल डिनोट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बाय स्मॉल एफ. तो बाय द एक्सपेरिमेंट इट हैज बीन शोन दैट अ फुल lubricated bearing F is the function of the three variable Zn upon P, it's a ratio and small d upon CD, it is diameter of the journal divided by diametrical clearance and L by D ratio. तो ये तीन वेरिएबल पे डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो Zn upon P is nothing but it is known as bearing characteristics number. तो Z इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट. कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल है ऑब्वियसली बात है उसकी विस्कोसिटी होगी. तो विस्कोसिटी ये कैपिटल Z है. स्मॉल z की यूनिट अलग होती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. कैपिटल Z इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट इन kg पर मीटर इनटू सेकेंड. प्लीज नोट डाउन विस्कोसिटी की यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती कभी कभी हो जाती है. तो यहाँ पर जो Z की यूनिट है बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर में, इट इज kg per meter into second and this is capital Z. Capital N is speed of the journal in RPM. Small p is the bearing pressure on the projected bearing area, यानी P is equal to load on the journal, जो radial load लग रहा है, divided by L into D. L into D is the radius of the bearing, radius of the journal. तो radius of the journal जो है projected area लेते हैं. projected area क्या कहलाता है? द प्रोजेक्टेड एरिया इज, जो कि जैसे कोई सिलेंडर है उसको हम टॉप व्यू से देखेंगे तो एल और डी का हमें रेक्टेंगल दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टेड एरिया. तो यहाँ पर डिजाइन ऑफ द बेयरिंग में हम प्रोजेक्टेड एरिया ही लेते हैं. पी स्मॉल पी बेयरिंग प्रेशर इज इक्वल टू लोड यानी रेडियल लोड अपॉन एरिया एल इंटू डी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हर न्यूमेरिकल में लगनी है. Coefficient of friction may be expressed as F is equal to function of Zn upon P d by C and L by D. So Zn upon P is the bearing characteristics number. It is a dimensionless number. It help to predict the performance of a bearing. तो जो टॉपिक हमने शुरू किया था bearing characteristics number, this Zn upon P is a dimensionless number which is known as bearing characteristics number. Now this Zn upon P is given by the Mackey's brother, so this is also called Mackey's investigation. So you can see to understand the topic, you can see whenever the journal, whenever we fit the shaft, we fit the journal into the bearing and we start doing the lubrication. We fill the lubricating oil between the bearing and journal and give the rotation to the shaft. What will happen? Initially the shaft is at, initially the journal is at the rest position. तो क्या होगा? मेटल टू मेटल कांटेक्ट अगर करेगा ना, जैसे जैसे जर्नल की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, आई रिपीट, जैसे जैसे स्पीड कैपिटल N बढ़ती चली जाएगी, ये कांस्टेंट स्पीड तक चली जाएगी. जो भी आरपीएम से हम रोटेट कर रहे हैं, लेट अस से 1200 आरपीएम से घुमा रहे हैं या 750 आरपीएम से घुमा रहे हैं, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी और स्टेबल स्पीड की तरफ जाएगा, इट विल मेक अ स्टेबल फिल्म. उससे पहले क्या होगा, जब तक इतनी जनरल फुल स्पीड में नहीं रोटेट करेगा, उससे पहले जो है एक स्टेबल फिल्म नहीं बन पाएगी. दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल फिल्म और थिन फिल्म लुब्रिकेशन. ठीक है. तो अगर एक स्पीड आने के बाद जर्नल जो है दिस कंसेप्ट दिस इज मेकिंग अ स्टेबल फिल्म, देन ओनली इट इज categorized as hydrodynamic lubrication, या this is called the concept of hydrodynamic lubrication. अगर एक स्पीड होने के बाद भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट
हो रहा है तो यह हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग नहीं कहलाएगी, मतलब बेरिंग फेल हो गई, मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो जा रहा है, आप बेरिंग का डिजाइन इस तरीके से कर ही नहीं पा रहे हो कि उसमें जो है स्टेबल फिल्म नहीं बन पा रही है, तो वो डिजाइन आपका फेल हो गया। नाउ सी ये ग्राफ कैसे आता है, इन द ग्राफ एक्स एक्सिस में क्या है, Zn अपॉन P विच इज बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर एंड F इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वी कैन सी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द Zn अपॉन P। कैसे डिपेंड करता है, यू कैन सी फ्रॉम द पॉइंट ए, अगर ए के हम लेफ्ट में देखें, दिस कर्व इज फ्रॉम S to A, ठीक है, A के लेफ्ट में अगर देखें, द बिहेवियर ऑफ द Zn अपॉन P एंड F इज डिक्रीजिंग एंड फ्रॉम द राइट ऑफ A दिस इज अ इंक्रीजिंग कर्व। तो F की वैल्यू डिपेंड करती है Zn अपॉन P पे, जब तक स्टेबल फिल्म नहीं बनती है इट इज इन डिक्रीजिंग मोड, और जब स्टेबल फिल्म बन जाती है इट इज इन इंक्रीजिंग मोड, ठीक है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय सर्टेन experiment, तो you can see, you can divide this graph into two part or three parts, इसको थ्री पार्ट में चाहे डिवाइड कर लो। लेट अस सी इन दिस डायग्राम आई हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट रीजन इज एस आर, सेकेंड रीजन इज आर क्यू एंड थर्ड रीजन इज क्यू पी। दिस एस क्यू रीजन इज कॉल्ड थिन फिल्म लुब्रिकेशन और आल्सो कॉल्ड बाउंड्री लुब्रिकेशन, मतलब जब शेफ्ट स्टार्ट की पोजीशन पे था और रोटेशन की पोजीशन पे आ रहा था, उसके बीच में जो कंडीशन है, मतलब दोनों के बीच में, जर्नल और बेरिंग के बीच में एक थिन फिल्म बन रही थी, पतली सी फिल्म बन रही थी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बाउंड्री लुब्रिकेशन। नेक्स्ट इज आर टू एस। आर टू एस में ये एक ट्रांजिशन फेज है, यू कैन सी देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अनस्टेबल फिल्म टू स्टेबल फिल्म, तो ये यू कैन सी पार्शियल लुब्रिकेशन, दिस जोन इज कॉल्ड पार्शियल लुब्रिकेशन। तो यहाँ पर पार्शियल मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो रहा है, यहाँ पर एस और आर में बहुत ज्यादा मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो रहा है और यहाँ पर पार्शियल मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो रहा है, एंड द थर्ड जोन इज कॉल्ड थिन फिल्म लुब्रिकेशन विच इज स्टेबल, ठीक है। तो जैसे जैसे जर्नल अपनी फुल स्पीड पे आएगा वी विल गेट अ थिक फिल्म लुब्रिकेशन, और एक जो फिल्म है लुब्रिकेटिंग ऑयल की फिल्म है वो थोड़ी सी मोटी मिल जाएगी हमें, थिकनेस उसकी ज्यादा होगी, और वी कैन से वी हैव अचीव द stable hydrodynamic lubrication. So this is explained in the same way. QR is the viscosity and speed are at the initially the viscosity and speed are low, pressure is ग्रेट, तो Zn अपॉन वैल्यू की जो वैल्यू होती है वो कम होती है, तो फिल्म की थिकनेस भी हमें कम मिलती है। पार्शियल मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अगर आर एस इज द इनपरफेक्ट और बाउंड्री लुब्रिकेशन एग्जिस्ट, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट अगर, ठीक है, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रीवियस रीजन यहाँ पर थोड़ा कम होता है आर एस में। नाउ सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, क्यू आर इज द रीजन, क्यू आर इज द रीजन इज द रीजन इन बिटवीन, बीच का जो रीजन है आर एस स्टार्टिंग का रीजन है। फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर एट ए, सो यू कैन सी द एट द पॉइंट ए जहां पर ट्रांजिशन, सी दिस ए इज नथिंग बट द ट्रांजिशन ऑफ द ग्राफ फ्रॉम अनस्टेबल फिल्म टू द स्टेबल फिल्म, तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है एट द पॉइंट ए, यू कैन सी corresponding to this friction is minimum, तो corresponding to a this point the value of Zn upon P, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस ग्राफ से we will get some value, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है Zn upon P की, this is equal to bearing modulus, तो ये बहुत पूछा जाता है what do you understand by bearing modulus, तो bearing modulus correspond to that value of bearing characteristics number which correspond to the मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कम मिनिमम फ्रिक्शन पर जो वैल्यू Zn अपॉन P की होती है, दिस इज कॉल्ड बेरिंग मॉडुलस, ठीक है। तो बेरिंग मॉडुलस शुड नॉट बी ऑपरेटेड एट दिस वैल्यू ऑफ द बेरिंग मॉडुलस, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बेरिंग, आपकी कोशिश क्या रहेगी, बेरिंग अगर आपने इस ऑपरेटिंग कंडीशन पे रखते हो, यानी वेरिएबल आप बेरिंग के इस कंडीशन, इस तरीके से आप Zn अपॉन P डिजाइन कर रहे हो कि इट कॉरस्पॉन्ड टू द मिनिमम फ्रिक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा, चांसेस होंगे जब ट्रांजिशन फेज में कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो जाएगा, जर्नल और बेरिंग के बीच में कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी, तो हम क्या करेंगे, Zn अपॉन P की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट से थोड़ा ज्यादा रखेंगे, यानी इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग तो K के बराबर है, ठीक है, K के बराबर है, बट वी विल द बेरिंग शुड नॉट बी ऑपरेटेड एट दिस वैल्यू ऑफ द बेरिंग मॉडुलस, इट इज रिकमेंडेड दैट Zn अपॉन P शुड बी at least
3K to 15K, इससे 3 से 15 गुना तक हम ज़्यादा रखते हैं अगर किसी बेरिंग में या किसी एप्लीकेशन में लार्ज फ्लक्चुएटिंग और हैवी लोड लग रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 15K के बराबर हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn अपॉन के की वैल्यू अगर 20 आ रही है, अगर Zn अपॉन के की वैल्यू अगर 20 आ रही है, यानी बेरिंग मॉडुलस की वैल्यू अगर 20 है, तो हम 20 ना रख के इसके 3 गुना यानी 60 या फिर इसके 10 गुना भी रख सकते हैं, यानी 200 तक भी इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं। जितनी वैल्यू हम ज़्यादा रखेंगे, वी विल अचीव द थिक फिल्म लुब्रिकेशन और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो Zn अपॉन P इज इक्वल टू ग्रेटर देन के, थिक फिल्म लुब्रिकेशन और अंडर हाइड्रोडायनेमिक कंडीशन। हाइड्रोडायनेमिक की कंडीशन ही तभी अचीव होगी जब हम Zn अपॉन P की वैल्यू K रखेंगे, अगर उससे कम हम रखेंगे वैल्यू, इट मीन्स ऑयल फिल्म विल रप्चर एंड देयर इज अ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अकर, तो ये हमारी डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। अगर हम Zn अपॉन P की वैल्यू हम K लेस देन K में रख देंगे, तो ये जो थिक फिल्म लुब्रिकेशन का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाएगा और ये बाउंड्री लुब्रिकेशन में चला जाएगा। हमारा क्लासिफिकेशन जो बेसिक क्लासिफिकेशन जो पेज नंबर 1 में हमने देखा था वही फेल हो जाएगा। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, Zn अपॉन P की जो वैल्यू है वो K से ज्यादा रखनी है, बेरिंग मॉडुलस से ज्यादा, कितनी ज्यादा रखनी है, दैट डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, इट कैन वेरी फ्रॉम 3K to 15K। Now how to calculate the coefficient of friction? Coefficient of friction can be for a well lubricated full journal bearing, it can be calculated by point, this is given in the design data book of Bhandari। ये data book में फॉर्मूला दे रखा है। This depend upon Zn upon P small d upon CD plus delta F। तो Z एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में। Zn upon P, Z इज viscosity in kg per meter into second, n is the speed of the journal in rpm, d is the diameter of the journal, d is the diameter of the journal in mm, d is the diameter of the journal, ये भी आपका mm में होगा क्योंकि यहाँ जो क्लियरेंस है ये भी डायमीटर क्लियरेंस है, ये भी mm में है, डायमीटर भी mm में होगा। डेल्टा f is a constant whose value is 0.002 for the LYD ratio is equal to 0.7 to 2.8। तो जनरली जो डेल्टा एफ की जो वैल्यू होती है वो 0.002 ही के बराबर होती है। यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी तो मैंने डिस्कस किया था आगे। यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो वी कैन से